have done. So we have defined topologies, we have done examples of topologies, then we have done that how you can create new topologies, okay, from bases, and then how you can take the product of topology, create new topology, how you can take the subsets and create new topologies, how you can take a topology and do this gluing process and create new topologies out of it. So what we have done so far is that we have defined topologies and how to create what we have. If I give you a summary of the course हमने क्या किया है, what are topologies and how to create new topologies. This is what that we have done. Okay. But I mean, if you remember our first objective that we had, the meta objectives that we had as course that was that we are interested in topologies उठाएं और फिर उन पर कंटिन्यूस मैप्स जो हैं वो अप्लाई करें, कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशंस करें और उससे फिर नई शेप्स क्रिएट करें. This is what that we want. Now we have now topologies, and we also have, and we will define something called continuity. Okay, मगर continuous objects की, the continuous functions की एक बड़ी खास property है, and that property is that they respect nearness. So they map the near things to the near things. Okay, this is what they really do. In other words, if you take, say for example, a continuous function in real line, I don't know, any function, okay, something like that, or any function that line, parabola, whatever. Okay. What is a good thing about? So I can say that I have continuously transformed this line into the curve. Okay. Now what happened? So this is the line before transformation, and this is the line after transformation. So what does the continuity की key property क्या है? मजे की वो ये कि if you take 2 points that are closer to each other, okay, then these 2 points are going to map onto 2 points which are going to stay closer. जरूरी नहीं है कि इतना ही close हो, okay? But as compared to other points, these 2 points are close. In other words, the closed things are mapped onto the closed things. Okay? Close से मुराद topology वाला close नहीं, near things are mapped onto near things. The near things, well, nearness is kind of reserved. हमका नहीं चल रहा. चल रहे हैं. ठीक है जी. Are we happy with it? थोड़ी सी तकलीफ की भाई. Topology is that if you take any, this is what that we're gonna do. If you take any object that looks like something like this, and you transform into I don't know, any other kind of object, okay, the near points, the near things are going to stay near to each other. So the nearness is respected. So our next objective is to mathematize this nearness, this notion of nearness. Nearness is a concept that is a human concept. Things are close to each other. Things are near to each other. But like we are not talking about what do you call so nearness has this specific meaning. But what we want to do, we want to make it rigorous. We want to mathematize it. Okay, इसको हम mathematize करेंगे. We will see that how cleverly people have thought and mathematized what do you call this idea. So let's just start with some definitions, some notions. So here's the thing. Let's say I have a set which is a topological space, and let's say I have some subset of it. Let's say let's call it A. Okay, so this is the subset. Now
there are points that are inside. So think about it. जब ये मैंने curve draw किया है, so this curve has splitted this object into this set into three parts. Can you tell me those three parts? So the outside. One is the outside inside, of this region. One is inside, and one is the boundary. line. So these are the three parts basically that it has to be into that. Now, if I give you an opportunity, okay, let's take a point basically in a set. फर्ज कर लीजिए ये मैंने A के अंदर पॉइंट लिया और मैं ये कह रहा हूँ कि ये A के अंदर है. I give you an opportunity to define a criteria. या मैं आपसे अगर पूछूं, आप कैसे justify करेंगे कि ये A के अंदर? If I give you an opportunity to think and give me a criteria that कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि ये नुक्ता अंदर है और ये नुक्ता बाहर है और ये बाउंड्री पर है. So let's think about interior. So how can you make sure? Think very natural. यानी ये एक मोहल्ला है, ठीक है, और ये घर है, नुक्ते इसके घर है. How can I argue common sense के through that के अगर ये घर है, ये वाकई जो है ना इस मोहल्ले को बाउंड्रीज बाउंड्रीज है. सर हम चेक करेंगे ये आउटर तो नहीं है. वो कैसे चेक करेंगे? दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज. इंटरसेक्शन फर्ज कर दे बना ये आपकी जमीन है सर. और ये दरख्त है. कॉम्प्लीमेंट सुन लो, ये आपकी जमीन है, ठीक है, और ये एक दरख्त है, ठीक है, जो आपकी जमीन के अंदर. और मैं आपसे कहता हूँ जस्टिफाई करो कि ये दरख्त आपकी जमीन के अंदर, जमीन आपकी है. मगर ये कैसे पता चले? If I give you a criteria that कि ये वाकई आपकी जमीन के अंदर. हमारे पास अच्छा, आप कहेंगे बाउंड्री के अंदर है, but how would you make sure actually that कि ये हम उसके क्लोज हो गए ना. हम उसके क्लोज हो? किसके क्लोज हो? हम जमीन के क्लोज हो. कभी हमारी हो गई. कागज दिखाई ना just think naturally about it. बहुत मुश्किल. How would you justify it? मैं सीरियस पूछ रहा हूँ. शायद भी वो ठीक था. Let's say all that, but like I'm interested in mathematics. यही मैं पूछ रहा हूँ, अंदर कैसे? चले आप अगर आप ये कह रहे हैं कि ये बाहर नहीं है तो ये अंदर है, ठीक है, तो मुझे जस्टिफाई कर दें कि ये बाहर नहीं है. सर दो कंडीशन चेक करेंगे सर. कौन सी कंडीशन? एक सर इंटरसेक्शन लेंगे सर. किसका? एक से और सर इसका अंदर बाहर से इंटरसेक्शन लेंगे, वो एमपीटी आना चाहिए. कॉम्प्लीमेंट में एक कॉम्प्लीमेंट वाला मैं आपसे कॉमन सेंस पूछ रहा हूँ, आप मुझे मैथमेटिक्स बता. सर पार्टीशन वाले डेफिनेशन नहीं है सर यहाँ पर. ए के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा इस पॉइंट का? ये तो ए के अंदर है. सर कंपेयर करेंगे बाहर वाले जो बाउंड्री के बाहर हैं घर, चेक करेंगे उनके मतलब क्लोज हैं क्या करेंगे? दिस इज व्हाट सर. कंपैरिजन यूनियन लेंगे किसके साथ? एक पॉइंट के साथ लेंगे तो ए ही आएगा, बिकॉज़ वो पॉइंट ए के अंदर है. सर ऑल आउटर से लेंगे तो वो ऑल आउटर पॉइंट एक मुश्किल है इसमें. फॉर एग्जांपल यही पॉइंट अगर बाउंड्री पर हो तो वो ए के अंदर है मगर वो बाउंड्री पर भी है. हाउ वुड यू से दैट कि वो बाउंड्री पर है, वो तो ए के अंदर है. थिंक अबाउट इट. आप ये लॉजिक वुडंट वर्क एक्चुअली. Someone thought very clever. They said, यार देखो, how can I make sure that this guy is inside? तो कहेगा जी देखो यार मैं इसका छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ इसके गिर्द और मैं ये कहता हूँ कि देखो ये छोटा सा टुकड़ा इस नुक्ते को कंटेन करता है और वो इस सेट के अंदर ही आएगा. इसकी जस्टिफिकेशन ये है
that कि ये छोटा सा टुकड़ा जो आपने लिया है इस नुक्ते के गिर्द ये पूरा का पूरा सेट के अंदर और एक ऐसा टुकड़ा दे फॉर एग्जाम्पल अब देखें फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक एन ऑब्जेक्ट हेयर आप यहाँ एक ऑब्जेक्ट लें यहाँ लें एक नुक्ता ठीक है यहाँ नुक्ता लें और यही लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करें आप ढूंढ ही नहीं सकते ऐसा कोई टुकड़ा कि जो इस नुक्ते को कंटेन करे और पूरा का पूरा यानी आप ये कह रहे हैं कि मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ सो आई कैन जस्टिफाई आई एम हैप्पी टू से दैट दिस पॉइंट इज इनसाइड बिकॉज मैं इसी इलाके का ये जो घर दूँ अगर ठीक है इफ आई टेक ऑल दीज हाउसेज ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स ये ज़मीन का टुकड़ा लूँ तो ये ज़मीन का टुकड़ा इस नुक्ते को कंटेन करता है और वो सेट के अंदर ही यदि इस ए के अंदर ही मौजूद है इसका मतलब ये है कि ये नुक्ता ए के इंटीरियर में है दैट्स व्हाट इज रियली द इंटीरियर इजंट दैट अ नेचुरल थिंग टू थिंक व्हाट बेटर देन दिस वुड बी मैथमेटिकली इजंट दैट कॉमन सेंस यस आप ये कहते हैं ये घर जो है यू नो इस मोहल्ले में ठीक है कैसे कहेंगे तो आप कहेंगे देखो ये घर इस घर के गिर्द जो ऐसे समझ लें घर हैं दीवार ठीक है वो सब के सब इसी मोहल्ले के अंदर लाए करते हैं अगर एक घर जो है वो बाउंड्री पर हो उसके गिर्द जब आप घर देखेंगे तो कुछ घर मोहल्ले से बाहर होंगे और कुछ मोहल्ले के अंदर और अगर फॉर एग्जांपल आप एक घर देते हैं जो वाकई उस मोहल्ले के अंदर है तो आप दूसरे घर ढूंढ सकते हैं जो उसको कवर किए हो That's a natural way. There could be other, there couldn't be. So it's a very clever way of defining interior. So let me give you a definition. Okay? I'll just generalize this idea. So the first term I have a topological space. Okay? And here. Subset of X. Let's say that he is a subset. Okay. What I am defining is interior point M. Okay. A point X in A is called interior point. If we can find an open set, let's say U, okay, topology is such that X उस open set के अंदर हो और पूरा A के अंदर तो ये सेट गवाही दे रहा है कि आप ये जो पॉइंट है एक्स इंटीरियर है समझा रही हो ये हमारा मोहल्ला है और वो वाकई ये वो घर है ऐसे बिल्कुल ऐसे ठीक है सब वेरी नेचुरल थिंक अबाउट इट अगर मैं आपको ये बगैर इसके समझाने की कोशिश करता हूँ दिस इज एब्स्ट्रैक्ट X is interior in A if we can find an open set such that X is in U and U is subset ठीक है by the way क्योंकि ये हमने X के corresponding एक open set ढूंढा है इसका नाम जो है हम UX रखेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये X का X को कंटेन करने वाला ठीक है by the way इस UX को U पॉइंट को नहीं शो U इस सर्कल को शो इस नाके को शो कर रहा है जो कि इसको कंटेन करता है और सबसेट ठीक है समझ आ रही एंड दिस UX ये जो UX है ठीक है इस कॉल्ड नेबरहुड
Actually, this is the word actually that is being used. Okay. Neighborhood of x. इसके लिए I'll just use shortcut always MDB. ठीक है, पूरा नहीं लिखा। समझ आ रही? तो हम ये कहेंगे कि x तो a के अंदर है, अगर उसके लिए आप एक नेबरहुड ढूंढ लेते हैं, यानी ओपन सेट, नेबरहुड क्या है? ओपन ढूंढ लेते हैं सच दैट कि वो नेबरहुड x कंटेन करे और a का सबसेट हो, so this will justify that x is an interior. ठीक है? सर बाउंड्री के सर बाउंड्री के लिए नहीं ढूंढ सकते। जब भी आप बाउंड्री पर ढूंढने की कोशिश करेंगे कुछ हिस्सा वो x a के अंदर तो है, so this is another thing. हर जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट अगर a के अंदर है तो वो इंटीरियर में है, नहीं, you can have points actually जो कि a के अंदर है मगर इंटीरियर में नहीं है पर बाउंड्री पर है, ठीक है? बिकॉज जब आप इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि भाई जमीन का टुकड़ा लें और ये देखें क्या वो शख्स के अंदर है या नहीं, अपने नहीं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट बाहर जा रहा है, कुछ अंदर जा रहा है, सब जगह ठीक है? So that's what is really the motivation for that. Now, सर फिर ये बाउंड्रीज के लिए डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है। क्या मतलब हम बाउंड्री अलग डिफाइन करें, वो एक अलग अलग मखलूक है, अलग मखलूक, ठीक है? Similarly, if I give you a way to define exterior actually, how would you define it? कैसे करेंगे define? तो आप कहेंगे x x ले लें। वाई लेते हैं। The better would be to say here that take a point x in x, वो इंटीरियर में तब होगा कि जब उसका नेबरहुड आप ढूंढें, वो सबसे rather than choosing it from. Because अगर आप a से ही लेते तो आपको महसूस ऐसा होता है कि ये जो एक अंदर है, what's the point of saying that it's not inside? हम कह रहे हैं कि कोई भी नुक्ता वो एक इंटीरियर में तब होगा कि जब आप ये जस्टिफिकेशन ढूंढ सकें, ठीक है? ये जस्टिफिकेशन। How about exterior? हम ये कहेंगे ऐसा x लें, जी जी बताएगा एक ऐसा एक्स ले, उसके लिए हम ओपन सेट ढूंढें, वो ए में कंटेन ना कर रहा, हम बोले वो पॉइंट हमारे पास बात ठीक है बिल्कुल। अगर कौन जो है थोड़ा सा और इससे बेहतर बने, ऐसा नेबरहुड फाइंड करें जो एक ए में नहीं हो। ए में नहीं हो तो कहाँ हो? This is something that we should do. ठीक है? That x is an x. It's called exterior. Exterior. If what happens? I can find an open set inside the topology such that x इस नेबरहुड में हो और वो a से बाहर हो। And how about boundary? Boundary कैसे डिफाइन करें? पॉइंट होना उसके इंटरसेक्ट दोनों की सेम सब ए और ए कॉम्प्लीमेंट्री जो मेन पॉइंट हो इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन नॉन इंटीरियर है सर। कॉम्प्लीमेंट का और एक A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट नल है। नॉन वो इंटीरियर कैसे सर, नल नॉन नल इंटीरियर। नहीं आएगी सर वो तो होती है नल वैसे भी। A इंटरसेक्शन A कॉम्प्लीमेंट एक कॉम्प्लीमेंट और एक ही जो इंटरसेक्शन आएगी वो वाला पॉइंट। नॉन और A कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन हमेशा नल जल्दी आएगा। ये यूनियन हमेशा पूरा एक्स होती है और इंटरसेक्शन X you have Sir. something actually in your head but उसे कहना जो है ना this is something that सर ऐसी पॉइंट है जो ए में भी हो और कॉम्प्लीमेंट भी हो।
वो कैसे हो सकता है? ये बाउंड्री लाइन इंटीरियर भी ना हो और एक्सटीरियर भी ना हो, और इसको मैथमेटिकली कैसे किया? सर अगर आप पॉइंट की बात कर रहे हैं तो पॉइंट तो किसी एक जगह तो है, पक्की बात है, या तो वो एक्स में है या एक्स ए में है या एक कॉम्प्लेक्स, ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब है फिर आप ऐसे पॉइंट की बात कर रहे हैं जो कि एक्स में ही नहीं है। ठीक है बात, इन दोनों नेक्स्ट का पूरा क्या होता है? इंटरसेक्शन निकाल जैसे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, तो अगर एक चीज ए में भी नहीं है और ए के कॉम्प्लीमेंट में भी नहीं है इन दोनों का तो मतलब एक्स में ही नहीं है। इंटरसेक्शन सर इन दोनों का यूनियन निकाल के इंटरसेक्शन एक्स के साथ करेंगे। इंटरसेक्शन जो है ना ए कॉम्प्लीमेंट से भी नहीं आनी चाहिए और ए से भी नहीं आनी नहीं हाँ You deserve, you know, shake hand. This is the precise answer that, you know, is answer. दोबारा बताइएगा। सर मैं कह रहा हूँ ऐसा हमें ये ओपन जो है ना इंटरवल यानी कि सेट ढूंढना चाहिए जो ए के कॉम्प्लीमेंट से भी उसकी इंटरसेक्शन नल नहीं आनी चाहिए और ए से भी उसकी इंटरसेक्शन इसका मतलब है कि लाइक वो नेबरहुड ए से भी इंटरसेक्ट करे और ए के कॉम्प्लीमेंट से भी इंटरसेक्ट करे, दोनों के साथ इंटरसेक्शन ना होनी चाहिए। ठीक है, सो इन अदर वर्ड्स x in x is on और in जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, बाउंड्री या is it's called boundary point, ठीक है, if I can find a neighborhood such that ना तो वो उसकी इंटरसेक्शन ए के साथ एम्पटी हो, ना ही उसकी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ है। ठीक है, वैसे इसका एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आप नेबरहुड लेते हैं तो वो ए का भी सबसेट ना हो और बी का भी सबसेट ना हो, ए कॉम्प्लीमेंट का भी सबसेट, क्योंकि अगर वो ए का सबसेट है तो इंटीरियर में चला जाए, अगर ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है तो एक्सटीरियर में चला जाए, तो दोनों का नहीं है तो फिर वो बाउंड्री पर। ठीक है जी, तो ये तीन किस्म के पॉइंट्स जो है हमने रखे, समझ लिए हैं कि इंटीरियर क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या है। सो नाउ लेट्स पुट ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स इनटू some sets. ठीक है, let's try to put them into some sets. सर बाउंड्री में जो नेबरहुड होगा वो बाउंड्री में नेबरहुड होगा, मतलब जो जी जी जी, ठीक है, वो ए में भी नहीं होगा एक ब्लू में नहीं होगा। नहीं कंप्लीटली ए में नहीं होगा और या और कंप्लीटली ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं, थोड़ा सा वो ए से भी इंटरसेक्ट करेगा और थोड़ा सा वो कॉम्प्लीमेंट से भी। ठीक है, now let me give this definition. ठीक है, some people like to write this, ए के ऊपर छोटा सा सर्कल लगा देते हैं, और some people like to int a this way. So this set, this is collection of all interior points of A, ठीक है, and call interior of A. ठीक है, तो अगर आपके पास एक सेट है, this guy is the collection of all interior points of A, and hence we call it interior. Okay? तो interior के अंदर जो points होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं उसको interior collection होता है, ठीक है? And similarly, not getting into the detail, there is something called exterior of A. It's the set of all exterior points
बहुत सारी नोटेशन so this is the notation that I like actually. So partial A is the notation for the मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ हो सकती हैं, यहाँ पर हो सकते हैं आपको मुख्तलिफ यहाँ कहते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, आर यू हैप्पी विद इट? Give you some problems, the marks, and then छोटा सा theorem करते हैं, and then let's do some examples. ठीक है, ढेर सारे let's then make that picture again. X. So, one theorem that you can immediately see is that X is the union. Think about it. अगर मैं exterior, interior और boundary को मिला दूँ सेट की, तो क्या बनना चाहिए? Entire set. Interior of A, union, exterior of A, union. So इन तीनों को मिला दें तो should be. Second important thing to do is that if I said A is open, if and only if A is equal to interior. एक सेट ओपन होगा, okay, अगर A अपने इंटीरियर के बराबर, उसमें बाउंड्री हो ही नहीं, तभी जब आप ड्रॉ कर रहे होते हैं तो ओपन सेट मुख्तलिफ जगहों पर, तो we just put the dotted line, a dotted rectangle line, and then we say that everything inside is open. everything inside को हम कहते हैं interior of A is open. See, then just exterior of A is also open. In fact, this is a criteria actually. यानी अगर आपके पास एक सेट ओपन है तो उसका इंटीरियर वही सेट होगा, और अगर कोई सेट अपने इंटीरियर के बराबर है तो फिर वो सेट ओपन होगा. This is something that is important. ठीक है. And let's try to prove this. The first thing is obvious. Do you think that मुझे फर्क कर लें, x लेते हैं आप, x बिंदु, what is the guarantee that के x जो है वो इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है या बाउंड्री? देखिए ये तीनों सेट्स तो इसके सबसेट हैं, this union is a subset of X. The only thing that you need to do is that pick a point from here and then show that वो इनमें से किसी एक में हो. कैसे आप करेंगे? UX इसका सबसेट है और इसका सबसेट इसके सबसेट यूनियन का
x वही मैं कह रहा हूँ तभी मैंने जो है so I have taken this side so I have taken x from x and let us show that x is in this union interior exterior boundary में से किसी एक जगह ठीक है कैसे शो करें what should be our first step up this is what I want to show so here is the one thing that you can so as x is in x as x is in x and x is A union A complement ये तो पूरा है set A and its complement ठीक है now this means that x is in A R ठीक है अब A में होगा या तो एक कॉम्प्लीमेंट होगा इसके अलावा तो कोई नहीं तीसरी बात now let us take the neighbor ux of x इसका मैं एक नेबरहुड लेता ux of x by the way you can ask इसकी क्या गारंटी है कि इसका एक नेबरहुड है हो सकता है ये एक ऐसा सेट हो कि जिसके ऐसा पॉइंट हो कि इसका नेबरहुड है ही यानी हमें ये पता है कि कम से कम एक जो ऐसा ओपन सेट है जो x को कंटेन करता है टोपोलॉजी के अंदर कैन यू टेल मी दैट ओपन सेट x itself है कैपिटल X itself वो टोपोलॉजी के अंदर है और x अगर कोई और नेबरहुड नहीं है तो x तो है ही इसका मतलब है इट इज गारंटीड दैट देयर इज अ नेबरहुड सो देयर इज नेबरहुड ऑफ x नाउ मुझे बताएं ux और A complement के दरमियान क्या रिलेशनशिप हो सकता है What are the possible relationships between U, X and A complement? U X मुझे पता है कि X का सबसेट है इसका मतलब है कि ये A यूनियन A complement का सबसेट है या A में होगा या A complement में होगा या दोनों के इंटरसेक्शन में होगा या दोनों में होगा दोनों की यूनियन में होगा ऐसा कहें ऐसे अब A के अंदर होगा इंटायरली या तो A कॉम्प्लीमेंट के अंदर होगा इंटायरली या फिर दोनों की यूनियन के अंदर कुछ हिस्सा A के अंदर है और कुछ हिस्सा नाउ थिंक अबाउट इट कि अगर यही ux पूरा A के अंदर है लेट्स कंसीडर द फर्स्ट केस कि यही ux पूरा A के अंदर है तो अगर ये पूरा A के अंदर है तो x क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा अगर यही ux पूरा एक कॉम्प्लीमेंट के अंदर है इंटीरियर हो जाएगा अगर इन दोनों में से किसी में भी नहीं है बाउंड्री में होगा कोई और जगह है ही नहीं इसके पास रहने के लिए ठीक है तो शैल आई राइट इट और लिख लेंगे मैं सिर्फ एक लिखता हूँ ठीक है now there are three possibilities either ux is inside A or ux is inside A complement entirely or ux is in the union actually A union A complement ठीक है some marks in other words यूं कहें और precisely कि ux A के साथ भी इंटरसेक्ट करता है और ux कॉम्प्लीमेंट के A साथ complement के साथ भी intersect now if this is true then x is an interior if this is true then x is an exterior and if this is true then x is non bounded ठीक है इसका मतलब ये है कि x या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा इनमें से किसी एक जगह भी अगर आ जाता है तो इस यूनियन में आ जाएगा ठीक इसलिए proves the first one.
नेक्स्ट वाला हो भी गया। ये ना? हमने ये शो कर दिया कि इससे क्या पता चला कि आपने ये x लिया है, वो x इसमें है या इसमें किसी एक में है, तो इसका मतलब है कि x इन तीनों की यूनियन के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपिटल X है ये सबसेट है। x का सबसेट कैसे है? ये गहरा सवाल है, तो ये आपको खुद सोचना चाहिए कि UX यानी x तो सब कुछ है, so x is the entire set actually, and your UX is a neighborhood, ठीक है, of small x from where, आप कहाँ से लेंगे x है, क्योंकि आपकी कायनात x है, तो UX can't go beyond what we call x, ठीक है जी, आप खुद करेंगे सर सबसेट है सर। कन्वर्स है। उसको करने की क्या जरूरत है, वो तो सारे ही सबसेट है, क्योंकि बिकॉज दिस इज यूनिवर्स, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, तीनों सबसेट्स हैं, तो यूनियन भी सबसेट है, लिख लेंगे सर एक। यानी इसे भी लिखने की जरूरत है तरीके से, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट योरसेल्फ, ठीक है, समझ आ रही है बात? यानी ये जो थ्योरम्स होते हैं ना, व्हेन यू प्रूव अ थ्योरम, ये बड़ी निखरी सी बातें होती हैं, यानी आप ये कहते हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें खिचड़ी बना के समझी हैं, उसके बाद एंड रिजल्ट क्या है, ठीक है, थ्योरम्स इज लाइक खूबसूरत करके सफाई सुथराई से रफ काम करते फिर आप फेयर कापी बनाते हैं, बिरयानी कर दें सबसे। तो थ्योरम्स आर लाइक दैट, ये नतीजा है बहुत सारे एनालिसिस सोचे जाने का। जिसने ये चीज़ें पहली बार सोची होगी तो उसने ऐसा तो नहीं सोचा होगा ना कि आज मेरा मूड है, आज मैं नेबरहुड की डेफिनेशन बना देता हूँ, आज मेरा मूड है, आज मैं इंटीरियर की डेफिनेशन सोच रहा हूँ, वो मुसलसल द वन हु इज थिंकिंग एक्चुअली वो मुसलसल सोच रहा है, और उस सोचने के नतीजे में ये चीज़ें दरियाफ्त हो रही, बन रही, डिफाइन हो रही, और फिर हमारी आसानी के लिए उनको एक तरतीब से दे के रख लिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने भी इसी तरतीब से सोचा। Alright, so let's now think about it. So I have to prove now that A is open if and only if interior of A is A. ठीक है? This is what it is. ये proof कर if and only if statements कैसे proof करते हैं? Let's take this side. That is assume करें A is open. ठीक है, assume करेंगे ये लोग। अच्छा, तो now we have to show that A is equal to the interior. This is what that we have to show. अब equality show करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसेट। So I need to show that इंटीरियर इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट। मैं ये कहता हूँ कि इंटीरियर ए का सबसेट है, दिस इज ट्रिवियल, ये ट्रिवियल है, क्यों है ट्रिवियल? प्रिसाइज बताओ आप। इसका नेबर पॉइंट है क्योंकि वो उसके अंदर एंड और इंटीरियर पॉइंट है बाउंड्रीज में है वो। क्योंकि उसके अंदर ला रहा है। बाउंड्री और डेफिनेशन सब पे नेबर उसके अंदर जरिए लाया, अंदर लाया करने का मतलब ये नहीं है कि वो इंटीरियर यूएक्स उसमें नेबर उसके अंदर में आता है। इंटीरियर So guarantee है, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं अपना फेवरेट एक्स से, which is from interior, उससे तो मैं ढूंढ सकता हूँ एक नेबरहुड एक्स में हो और वो ए में हो। तो भाई अगर ये एक्स यूएक्स में है और ये भाई साहब पूरा का पूरा ए के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब एक्स भी ए के अंदर बैठा है। X is inside, so it follows from definition. It follows from definition. ठीक है? Sure. The more non-trivial thing is to basically show that A subset है interior. What do you think that? How should I begin? the set of
So I need to pick an element x from A and I show that this is open. क्यों open है? Sorry. मुझे ये शो करना है कि ये x इंटीरियर ऑफ A है, ठीक है? अब इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक ओपन सेट ढूंढना है जो x को कंटेन करे। ux क्या होता है? ये ओपन सेट है। मैं ये कहता हूँ कि x A के अंदर है, आपको एक ओपन सेट ढूंढना है जो x को कंटेन करे और A का सबसेट हो, ठीक है? मुझे वो ओपन सेट बता दो, वो ओपन सेट कौन सा हो? खुद ही होगा। दिस इज गुड बिकॉज ये बताता खुद ओपन है। ये बताता खुद भी तो ओपन है, तो मुझे कोई दूसरा नेबरहुड ढूंढने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? समझ आ रही है? Now since A is open, so I can take this neighborhood of x to be as A actually. That is that x A में है और A सबसेट है A। यानी जो मुझे नेबरहुड चाहिए था वो खुद A है, तो दूसरा ढूंढने की जरूरत ही नहीं। यहाँ डिमांड क्या है? कीप इन व्यू, डिमांड ये है कि सिर्फ एक ओपन सेट बता दो जो आपके नुक्ते को कंटेन करता हो और पूरा का पूरा सेट के अंदर। अब अगर मैं जानता हूँ कि ये ओपन है तो मुझे ढूंढने की, ठीक है? अच्छा, नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट द रिवर्स। Now I want to show that whatever, in other words, whose current is equal to interior of, ठीक है? And prove that A is open. ठीक है? This is what I have to show. ये अपने इंटीरियर के बराबर है, यानी A में सिर्फ है ही इंटीरियर, ठीक है? जब मैं ये कह रहा हूँ ना कि A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A, यानी मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि A सिर्फ है ही इंटीरियर, ना उसमें बाउंड्री शामिल है, कुछ भी नहीं, ठीक है? दैट्स व्हाट दिस वाज दैट। तो अगर एक सेट हो ही इंटीरियर, उसमें कुछ और हो ही ना, तो वो ओपन हो। So I need to show that A is open. कैसे शो करूँ? It is enough to show that interior is open. अगर मैं ये साबित कर दूं कि इंटीरियर सेट जो है ये ओपन है, ये भी ओपन हो जाएगा। That's what the track that I'm gonna take. So for that, I will show that interior of A इंटीरियर ऑफ ए कैसे शो करूँ? Let's think of in a strategy. This is my A. Let's make. That's my A. This is what is given to me. Open. ठीक है? Open the wrapping. It doesn't have a boundary. This is interior of A. This is A itself. ठीक है? अब मुझे ये शो करना है कि this A is open. The interior of A is open. ये इंटीरियर है, ये everything inside except boundary. ठीक है? होगी अजीब सी चीज, you can have something that doesn't have a boundary. That's what the truth is. It doesn't have a boundary. तो आप मुझे बताएं क्या आप ऐसा करें कि जिससे ये साबित हो सके। जानते हैं कि जो इंटीरियर है
वो यूनियन ऑफ द ओपन इंटरव्यूज ठीक है सर हर एक पॉइंट के जो क्या है ओपन इंटरवल बना दो इंटरवल बनाते हैं वो ओपन सेट Open set. ओवर रोड नहीं सो दिस इज व्हाट मींस अ गुड पॉइंट है थिंक अबाउट उनका कहना ये है यार उन्होंने टोपोलॉजी पहले पढ़ी हुई है तब ये तो याद आ रहा है अदरवाइज ही इज थिंकिंग डीपली व्हिच इज गुड ये फर्स्ट कर रहे हैं ये ढेर सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ये सारे इंटीरियर पॉइंट्स अब मुझे पता है कि हर पॉइंट पर मैं एक ओपन सेट ड्रॉ कर सकता हूँ हर पॉइंट पर एक ओपन सेट ड्रॉ कर सकता हूँ in other words I can cover this interior with these open balls अच्छा ये जो ओपन बॉल्स हैं ओपन सेट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं ओपन है इसका मतलब है कि क्या है एलिमेंट है टोपोलॉजी ऐसे ही है ना और टोपोलॉजी की खास बात क्या होती है कि अगर आप उसमें से ढेर सारे ओपन सेट्स ले लें और उनकी यूनियन ले लें तो वो भी तो इसका मतलब क्या है इंटीरियर ऑफ ए शुड बी ठीक है क्लेम ये है इंटीरियर यूनियन है ये तो हमने ना बातें करते हैं यू हैव टू प्रूव इट एक्चुअली इट इज यूनियन ऑफ नेबरहुड्स यानी इनमें से हर एक सर्कल जो है ये नेबरहुड द यूनियन ऑफ द नेबरहुड्स ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट आर इनसाइड यानी आप एक्स में से इंटीरियर पॉइंट्स उठाएं उसको कंटेन करने वाले नेबरहुड्स लें और फिर उन सारे नेबरहुड्स की यूनियन करो मेरा क्लेम ये है कि इंटीरियर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस यूनियन ठीक है कैसे पता चलेगा eventually everything so every proof breaks down so you have an idea and you made it precise now when you are trying to prove वही पुरानी ट्रिक सिस्टम एक प्रूफ में 4 प्रूफ बातें करना आसान है साबित करना मुश्किल ठीक है this is what but the thing is that when you make pictures actually things become much more समझ आने लगती है हो क्या अदरवाइज इफ आई जस्ट राइट प्रूफ ठीक है ठीक है एनीवे सो दिस इज व्हाट दैट आर सो लेट्स टेक अ पॉइंट फ्रॉम द इंटीरियर एक्चुअली ठीक है सो लेट्स शो दैट कि ये x हर x यहाँ है सो इफ x इज एन इंटीरियर व्हाट डज इट मीन मैं ढूंढ सकता हूँ एक नेबरहुड सच दैट कि x कहाँ है इस नेबरहुड के अंदर है और वो सबसेट है किसका एक इंटीरियर ऑफ इंटीरियर सबसेट है किसका इंटीरियर एक हम A का because that's what is the definition of interior point but luckily interior so I'm good okay, this is what is the assumption समझ आ रही है इसका इसका मतलब क्या हुआ ओह सॉरी हाँ ठीक है so this is equal to interior इसका मतलब ये है कि नहीं I'm doing something silly and x is in ux and x is inside a which is equal to interior that's fine मगर जब हम justify ये करना है कि यही x is union में ठीक है by the way इस x को मैं x star से replace कर दूँ ताकि ना इस x और इस x में confusion हो लेकिन मैंने एक एलिमेंट लिया इंटीरियर से उसके लिए एक नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि वो यूएक्स को कंटेन करता है और सबसेट है इसका जी ए का अब मुझे ये बताएं कि इस नेबरहुड और इस यूनियन ऑफ नेबरहुड्स का क्या रिलेशनशिप है आपस में इनका कोई रिलेशनशिप है क्या दोनों
मतलब ये है कि यहाँ सारे पॉसिबल नेबरहुड्स हैं यस सर और ये उनमें से एक है, यस सर एलिमेंट्स सर यानी ये उनमें से एक है। तो as सबसेट होगा। so, या ये कहेंगे as ये जो ux स्टार है is a subset, let me see, just say that, of this union of ux का सबसेट है। क्यों सबसेट है? बिकॉज यहाँ सारे पॉसिबल नेबरहुड्स मौजूद हैं, ठीक है, और उनमें से अब मैं एक पिक कर रहा हूँ, जस्ट पिकिंग वन एक्चुअली। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द सबसेट्स ऑफ ऑल द यूनियंस, ठीक है, एज यू से दैट कि भाई इफ यू हैव A union B, A is a subset of A union, B is also a subset of A union। अगर आपके पास यहाँ यूनियन है और फिर इनमें से इन्हीं में से कोई एक ले लेते हैं तो वो सबसेट हो। So ux star is subset of this union। तो इसका मतलब ये है कि यही x star इस यूनियन। इसका मतलब I picked an element from here and I shown that this is inside। तो इससे क्या पता चलता है? Interior of A is a subset of union of US। ठीक है, ये बार ये नहीं लिखता, you have to keep in mind that this is what it is। Now let's think about the other way around। Let's just think about the other way around। यदि x मैं लेता हूँ इस यूनियन में, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? x इनमें से किसी एक में होगा, ठीक है, जो सबसेट है किसका? इंटीरियर का, और जो कि बराबर है किसके? A के। तो इसका मतलब ये है, तो ये सबसेट अगर है इसका तो इसका मतलब है कि x इंटीरियर में, x इंटीरियर स्टार ले लें ताकि इस x और इस x को कंफ्यूज ना करें। x मैंने ले लेता हूँ यूनियन में, ठीक है, और ये सारे ux है जो इंटीरियर के अंदर हैं, which is equal to this, so therefore x star must be inside interior। ठीक है, या ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, इससे ही साबित हो जाएगा कि x is inside। ठीक है, इससे क्या पता चला? ये पता चला कि किसी भी सेट का जो इंटीरियर है वो ओपन, या अगर कोई सेट ओपन हो, इससे ये पता चलता है कि दिस यूनियन इज सबसेट ऑफ इंटीरियर ऑफ ए, एंड सो दिस इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू दिस यूनियन। और क्योंकि ये यूनियन ऑफ ओपन सेट से यूनियन होती है जो कि बराबर है इंटीरियर के और जो कि बराबर है ए के, लिहाजा ए भी ओपन। ये बिल्कुल हमारा असल मकसद क्या था? अगर ए इंटीरियर के बराबर है और इंटीरियर ओपन है तो फिर ए भी ओपन। ठीक है, दिस इज व्हाट इज मीनिंग। चलेंगे, it's a beautiful logical result। Let's do some examples। Example। तो बस हम इसको लिख सकते हैं, so A is equals to interior of A। लिखेंगे, ये मैंने आधे में छोड़ा है। You have to obviously say that as and thus interior of A is equal to this union, interior is equal to A, so therefore A is open। इंटीरियर When you are writing, you have to complete the देखो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है जी, चलें we'll do some examples। अच्छा, अब ये बता दो मिड कब तक है, कहाँ तक